علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ پہلی خبر آپ کو دیں گے ننکانہ صاحب سے، جہاں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کا کہنا ہے ننکانہ صاحب ہمارا اپنا گھر ہے، چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ تفصیلات جانتے ہیں وہاں سے ہمارے نمائندے اسامہ ور کی اس رپورٹ میں۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ بھارت سے آئے سکھ یاتری سخت سیکیورٹی حصار میں ننکانہ صاحب سے سچا سودا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈی پی او فراز احمد نے بھارتی مہمانوں کو الوداع کیا۔ بھارتی سکھ یاتری 13 نومبر تک پاکستان کے گرودوارہ جات میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے پنجاب میں جتنا مان سمان اور مقام دیا وہ بھلا نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ننکانہ صاحب کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں نئے روڈ، موٹر وے، پودے اور شہر کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا۔ حکومت پنجاب نے ہمارے لیے لنگر، رہائش اور علاج معالجے، ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے۔ بھارتی سکھ یاتری: ننکانہ صاحب ہمارا اپنا گھر ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پاکستان پرامن اور محبت کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ جنگ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ ڈی جی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت ذبح کرنے والے غیر قانونی مذبح خانے، میٹ شاپس اور علائشوں سے آئل تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپے مارے۔ ملزمان بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت ذبح کرتے اور جانوروں کی علائشوں سے آئل تیار کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جنگ سے اسد حیات راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن فیصل آباد امتیاز حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر عدنان حیدر کی سربراہی میں بیمار و مردہ جانوروں کا گوشت ذبح کرنے والے غیر قانونی مذبح خانے، میٹ شاپس اور جانوروں کی علائشوں سے آئل تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپے۔ ملزمان بیمار جانوروں کا گوشت اور علائشوں سے آئل تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ چھاپے کے دوران فوڈ اتھارٹی افسران پر ملزمان کی جانب سے جان لیوا حملہ بھی کیا گیا، جس میں اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس، پیرا فورس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ کارروائی کے دوران جیلی موریں، 300 لیٹر سے زائد آئل اور ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی و موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ 4 یونٹس اور میٹ شاپس سیل کر دی گئی۔ ناقص گوشت تلف کر دیا گیا اور ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر امتیاز حسین نے کہا کہ غذائی دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی۔ سید اسدیات، NTN نیوز، جنگ۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چنیوٹ کی غفلت کی وجہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ 4 ماہ سے بجلی بل کی عدم ادائیگی پر وابڈا نے کارروائی کی۔ شہری صاف پانی کے حصول کے لیے دیگر علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے کیسر وینس۔ جی کیسر۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ کے علاقے چاٹیبیاں والے، جہاں پر انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے بجلی کا بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وابٹا نے جو ہے یہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جو ہے بجلی منقطع کر دی، جس کی وجہ سے اہلی علاقہ پانی کے حصول کے لیے شدید متاثر ہے۔ اس وقت بسر سے علاقہ کے لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے علاقہ شدید متاثر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، ہم محلہ چاٹیبیا والے سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ ہمارا جو ہے نا یہ میٹر انتظامیہ نے نا بل نہیں تارا، اس کی وجہ سے نہ کٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پانی دوسرے علاقے سے بھرنے جاتے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے میں یہ اپیل ہے کہ جو سا بل ہے نا وہ ادا کریں اور پانی کی بحالی ہو۔ جی بالکل، یہاں پہ چیف جو ہے ٹی ایم مظفر بیگ سے اپیل کی گئی کہ فوری طور پر جو ہے بل کی ادائیگی کی جائے اور میٹر کو چالو کروایا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دیگر علاقہ کے لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی جان، یہ جون سا ہے نا انتظامیہ نے جون سا بجلی کا بل ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں شدید پانی بھرنے میں مشکلات آتی ہے، اور یہاں صرف صاف پانی بھی نہیں موجود ہے پینے کے لیے۔ تو ابھی یہی فلٹر لگا ہے یہاں پہ، اس کا پانی ہم پیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے محلہ کے لوگ دوسرے پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ تو یہی اپیل ہے کہ جون سا ہے نا اس کا جلد سے جلد بجلی کی بحالی کرے۔ جی بالکل، یہاں پہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹی ایم چیف کی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے بل اور ادا نہ کرنے کی وجہ سے وابٹا جو ہے اس نے بجلی کی جو ہے وہ فراہمی معطل کر دی، جس کی وجہ سے تمام تر علاقہ کے لوگ جو ہے شدید پریشان ہیں اور پانی کے حصول کے لیے دیگر علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ جبکہ شہریوں نے حکومت وقت ڈپٹی کمشنر چور کمشنر فیصل آباد سے اپیل کی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور بل کو ادا کروا کے جو ہے بجلی جو ہے چالو کروائی جائے اور پانی فراہم کیا جائے۔ جی، خانے والی کے قبرستانوں میں مردوں کا سکون بھی محفوظ نہ رہا۔ کفن سلپ اور درخت تک چوری ہونے لگے۔ نشئی اور درندہ صفت عناصر قبروں کی بے حرمتی کر کے انسانیت کو شرما رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او اور خانے وال سے فی الفور کارروائی اور قبرستانوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خانے وال سے ہمارے نمائندے شیخ سہیل مزید بتائیں گے۔ جی سہیل۔
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मरकज़ी कब्रिस्तान जसवंत नगर पर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कब्र तोड़ी गई है और कब्र तोड़कर उसका सरिया निकाल कर बेच दिया गया है। नशेइयों की जानिब से कब्रों की बेहुरमती रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर दरख्तों की कटाई, दरख्तों की चोरी हो रही है, और जो यहाँ पर नलके लगाए जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे पानी देने के लिए, वो नलके भी यहाँ से चोर उठा कर ले गए हैं। मज़ीद जानते हैं, यहाँ पर एक शख्स आए हैं अपने प्यारों की कब्रों पे फातिया देने, उनसे वो क्या कहते हैं। मैं तो दंग का दन रह गया। 2 दिन पहले मैं लाहौर गया हूँ अपने किसी काम से, आके देखा तो तकरीबन हमारी 6 कब्रें 6 की 6 नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ से आके पूछा जो यहाँ पे कब्रिस्तान में लोगों, तो उनसे पूछा, वो बता रहे हैं कि जी नशे ही आए थे, वो स्लिपें निकाल के ले गए हैं। बिल्कुल जैसे आपने शहरियों का सुना, यही कहना था उनका कि हम अपने प्यारों की कब्रों पे फातिया देने आए, तो जब देखा तो वो कब्र ज़मीन दोष हो गई है, उसमें से स्लैपें निकाल ली हैं नशेइयों ने, और स्लैपें निकालने के बाद उसका सरिया बेच दिया है। यहाँ से मुतअद्दिद जो है दरख्त भी चोरी करके बेच दिए गए हैं, और जो अपनी प्यारों की कब्रों पे पानी छिड़कते थे उन नलके भी यहाँ से अब मुकम्मल तौर पर चोरी हो गए हैं। शहरियों का यही कहना था DPO खानेवाल से और DC खानेवाल से, कब्रिस्तान की भी जो है फिलफोर कोई ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पर हैदर स्कोर जो है दिन में कम से कम भी 5 से 7 चक्कर लगाए, और इन जो नशावर चीज़ें बेचने वाले हैं और नशे, इनके खिलाफ फिलफोर एक्शन लेना चाहिए DPO को, ताकि जो लोग यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों में फातिया देने आते हैं उनको इत्मीनान आ सके। जी बात होगी अंडों की, जो शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। सर्दियों में अंडों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। खानपुर में फ़ी दर्जन अंडे 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये दर्जन फ़रोख्त होने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल होने से महंगाई कम करने के हुकूमती दावे भी हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक वसीम से, जो इस वक्त अंडे की दुकानें मौजूद है। जी वसीम। आज मुल्क भर की तरह खानपुर में जो है अशिया खुर्दनोश की चीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो है अंडे की कीमतों को पर लग गए हैं। 200 रुपए दर्जन बिकने वाला अंडा जो है 400 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी है जो प्राइस को कंट्रोल करने में बिल्कुल गैर फाल नजर आ रही है। मैं एक मकामी शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी यही अंडा 220 रुपये 200 रुपये दर्जन मिलने वाला अंडा था, और आज ही इस अंडे की कीमत 380 रुपये दर्जन के हिसाब से है, 400 रुपये दर्जन के हिसाब से है। तो मैं यही मुतालबा करना चाहूँगा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, CM पंजाब से, कि हमारे लिए कम से कम महंगाई को इतना कंट्रोल कर दिया जाए कि ये छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, तो हम इनको अफोर्ड कर सकें। महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है कि कोई कमेटी ऐसी नहीं है जो काम कर रही है और प्राइस कंट्रोल करे। तो मेरा मुतालबा मरियम नवाज साहिबा से है कि कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, तश्कील दी जाए, ताकि हम गरीब लोगों की दाद रसी हो सके। अच्छा, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है महंगाई को कम कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहतर इक़दाम करे, ताकि महंगाई में किसी गरीब आवाम जो है सुख का सांस ले सके। जी वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने ज़िला शेखुपुरा की तहसील फ़िरोज़वाला का दौरा किया और तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से मुनक़िदा आला सतह के इजलास की सदारत की। तमाम अफसरान ने हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद के बारे में उनको आगाह किया। इस हवाले से देखते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन बाबर अलाउद्दीन ने ज़िला शेखुपुरा का तहसील फ़िरोज़वाला का तफसीली दौरा किया और तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मुनक़द आला सतह इजलास की सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़वाला अदील खान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी LWMC माहौलियात और दीगर मुतल्लिक़ा महकमा अफसरान ने हुकूमती इक़दामात पर अमल दरमदार बारे ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन बाबर अलाउद्दीन सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने इस मौका पर अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी की। बाद अज़ ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात का खात्मा, सफाई सुथराई दीगर हुकूमती इक़दामात पर अमल दरमदार का तफसीली जायज़ा लिया। चेयरपर्सन वज़ीर आला इंस्पेक्शन बाबर अलाउद्दीन ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर अवामुन्नास को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अव्वलन तरजीह के साथ यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम मुतल्लिक़ा महकमे सर्विसेज की बर वक्त फराहमी के लिए अपने पेशावर सलाहियतों को बरक़रार ला रहे हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी की इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स ईंटों के भट्टाजात और धुआं खर्च करने वाली गाड़ियों को फ़ज़ाई आलूदगी के बास नहीं बनने देंगे। अवाम को पुरसकून, साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करेंगे।
अलाउद्दीन, चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलांस मॉनिटरिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने तहसील हेडक्वार्टर में मरीजों और उनके लाहकीन को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और मरीजों से सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। वेलकम बैक। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी महंगाई से परेशान हैं, जबकि दुकानदार मंडी के बढ़ते हुए नरखों की वजह करार दे रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। इस बारे में देखते हैं इफ्तिखार सिद्धू की रिपोर्ट। में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जियां, दालें, घी समेत बुनियादी अशिया के नर्ख आसमान को छू रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट दिखावे की चीज बनकर रह गई है। ये चीजें हैं सब्जियों में, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन या प्याज हो गया, ये सस्ती हो रही है। मुझे तो ये लगता है ये शुरू ही महंगाई है, जिसपे हमारा जो इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं। अगर चेक एंड बैलेंस हो प्रॉपर तौर पे सब्जी मंडी पे वो सारा इसका करें तो आई थिंक वो हो जाएगा। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक शहर भर में 70 से ज्यादा प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने किए जा रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान जो गुज़श्ता एक हफ्ता गुजरा है उसमें तकरीबन 65,441 इंस्पेक्शन की गई और इसके नतीजे में मुख्तलिफ जो खिलाफ वर्जियाँ देखने में आई उस पर 3,65,000 के करीब जुर्माना किया गया। उधर शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। सर्दियों का मौसम आते ही मुरीद के देही इलाकों में गन्ने के खेतों से गुड़ बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुदरती मिठास से भरपूर देसी गुड़ न सिर्फ देहात मईशत का अहम हिस्सा है बल्कि तवानाई से भरपूर ग़िज़ा करार दिया जाता है। देखते हैं गन्ने से गुड़ तक के इस रिवायती अमल पर ये रिपोर्ट इमरान अली भट्टी की ज़ुबानी। हाँ, यह है मुरीदके के नवाही इलाके का एक देसी भट्टा जहां गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जारी है। सर्दियों का मौसम आते ही गन्ने की कटाई शुरू हो जाती है और किसान अपने खेतों से गन्ना काटकर भट्टों तक पहुंचाते हैं। यहां सबसे पहले गन्ने को क्रशर मशीन में डालकर इसका रस निकाला जाता है। निकाला गया रस बड़ी देगों में लकड़ी की आग पर उबाला जाता है ताकि इसमें मौजूद नजास्तें खत्म हो जाएं। उबालने के दौरान मुसलसल लकड़ी के चमचों से इसे हिलाया जाता है ताकि रस गाढ़ा होकर गुड़ की शक्ल अख्तियार कर ले। ये मरहला सबसे ज्यादा मेहनत तलब होता है क्योंकि दर्जा हरारत की मामूली तब्दीली भी गुड़ के जायके को बदल सकती है। जब रस गाढ़ा हो जाता है तो इसे सांचों में डाल दिया जाता है जहां यह ठंडा होकर ठोस गुड़ की सूरत अख्तियार करता है। इस गुड़ को बाद में ब्लॉक की शक्ल में मार्केट भेजा जाता है जहां ये ना सिर्फ मिठास बल्कि देहात की मेहनत की खुशबू भी साथ ले जाता है। देसी गुड़ कुदरती तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है जो ना सिर्फ जिस्म को ताकत देता है बल्कि शुगर की निस्बत ज्यादा मुफीद और खालिस माना जाता है। गुड़ की तैयारी में सबसे बड़ा किरदार उन मजदूरों का है जो दिन रात आग के करीब बैठकर अपनी मेहनत को मिठास में बदलते हैं। यही वजह है कि मुरीदके और गिरदोनवा के देहातों में आज भी देसी गुड़ की मांग बहुत ज्यादा है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, NTN न्यूज़, मुरीदके। डोंगा बोंगा में भारतीय बंदर का राज है। नवाही इलाके में भारत से आया एक बंदर गुज़िश्ता 4 रोज़ से सब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये बंदर कभी घरों की छतों पर तो कभी दरख्तों पर उछलता नजर आता है जिससे शहरी हैरान और परेशान हैं। वाइल्ड लाइफ की टीमें मुसलसल कोशिशों के बावजूद अब तक इसको काबू नहीं कर सकीं। दिलचस्पी की बात यह है कि शहरियों ने तजस्सुस और शौक़ के आलम में इसे जापानी फल, केले और बिस्किट पेश किए जिसे वो खाना शुरू कर दिया, जबकि बाज़ मकामी अफराद के मुताबिक ये बंदर नहायत चालाक है और हर बार अहलकारों को चकमा दे जाता है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने शहरियों को बंदर से फासला रखने की हिदायत की। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।